Hi students, today's class is types of reactions in organic chemistry. Types of reactions. Types of reactions in organic chemistry. Organic chemistry లో కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి? Types of reactions in organic chemistry. Basically, chemical reactions in organic chemistry are classified into four types. Okay. Four categories or four types. Number one, substitution reactions. Note down. Substitution reactions. Okay. Another type of reactions generally take place in organic chemistry are addition reactions. Addition reactions. And the third one is what you call elimination reactions. Elimination reactions. And the next one is rearrangement reactions. Rearrangement reactions. See, ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ఏవైనా కెమికల్ రియాక్షన్స్ వచ్చాయంటే ఈ ఫోర్ టైప్స్లో ఏదో ఒకటి అయి ఉంటుంది. जो भी केमिकल रिएक्शंस आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये फोर किस्म के होते हैं, फोर टाइप्स. इधर आर मीन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, आर एडिशन रिएक्शंस, आर एलिमिनेशन रिएक्शंस, आर रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जो भी हो सकता है. ओनली फोर टाइप्स. సో ఒక్కొక్క టైప్ గురించి డీటెయిల్డ్గా స్టడీ చేద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్. Substitution reactions. Generally, substitution reactions given by saturated compounds. What are saturated organic compounds? Saturated organic compound means क्या कहते हैं? Saturated organic compounds means, tell me. ఏదో చెప్పావు, మరి డబుల్ బాండ్ అన్నావు. నో డబుల్ బాండ్. డబుల్ బాండ్, ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటే అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్. సో గివెన్ బై సాచురేటెడ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ మీన్స్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ కంటైనింగ్ కార్బన్ కార్బన్ సింగిల్ బాండ్. ఓకే, కార్బన్ కార్బన్ సింగిల్ బాండ్. That means which organic compound contains carbon carbon single bond? Alkanes. Means example, alkanes, saturated hydrocarbons, alkanes, and alkyl halides and aromatic compounds. These compounds give which type of reactions? Substitution reactions. Okay, so means those compounds should contain such type of carbon carbon single bonds, then only they give substitution reactions. Okay, see here, substitution reactions. These are the characteristic reactions of saturated compounds. Means alkanes, alkyl halides and aromatic compounds. Alkanes general formula क्या है? What is the general formula of alkane? CnH2n plus 2. And alkyl halide general formula RX. And aromatic compounds. Aromatic compounds means what are aromatic compounds? Aromatic compound means the compound which contain 4n plus 2 pi electrons according to Huckel's rule. The compound which contains 4n plus 2 pi electrons is called aromatic compound. वो भी पढ़ेंगे, बाद में आएगा aromaticity के बारे में. Later I will explain about aromaticity. पहले यहाँ पर alkanes, alkyl halide general formula you know, isn't it? RX. And aromatic compounds give such type of reactions. In substitution reaction, one of the atom or group replaced by another atom or group. As a result, a new compound is formed. Okay, that type of reaction is called
In these reactions, one or more atoms or groups. Look at the board. See here. Substitution reactions. One atom or group of atoms replaces another atom or group of atoms of an organic molecule without any change in the remaining part of the molecule. Molecule का shape तो change नहीं होता है, remaining part वैसा ही रहता है. एक atom or group of atoms replaced by another atom or group of atom. एक group of atom or atom जो भी हो सकता है, atom or group of atom replaced by another atom or group of atom. As a result, a new compound is formed. See, पहले बोर्ड पे देखो, मालूम हो जाएगा आपको, समझ सकते हैं. CH3Cl, what is its name? Chloromethane. Chloromethane, isn't it? Treated with sodium hydroxide NaOH in the presence of aqueous medium. As a result, ये Cl minus निकल के OH minus अटैच हो जाता है यहाँ पर. Replacement, isn't it? ఒకటి పోయి ఇంకోటి రావడం. So ఈ Cl minus పోయి OH minus అటాచ్ అవుతుంది. As a result, compound becomes CH3OH and ఈ Cl ను Na కలిసి NaCl फॉर्म అవుతుంది. क्या होता है इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में? जस्ट याद रखना, इसके बारे में कुछ नहीं पूछेगा. व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसा नहीं पूछेगा. ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో మనకు వచ్చే రియాక్షన్లో అది సబ్స్టిట్యూషనా, ఎడిషనా, ఎలిమినేషనా, రీఅరేంజ్మెంట్ అనేది మనకు తెలియాలి. అది తెలియాలి అంటే ఇక్కడ బేసిక్ నాలెడ్జ్ నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం. సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్లో ఏమవుతుందంటే ఒక యాటమ్ లేదా గ్రూప్ ఆఫ్ యాటమ్ బయటకు వెళ్ళిపోయి అది బయటకు వెళ్ళి ఆ ప్లేస్లో ఇంకోటి వచ్చి యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, సబ్స్టిట్యూషన్ एक के प्लेस में दूसरा ऐड करना. सपोज हियर CH3Cl मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल के OH माइनस अटैच हो जाता है. सो एज ए रिजल्ट दिस कंपाउंड बिकम CH3Cl के बदले में CH3OH होता है. ओके, Cl माइनस बैठ गई, OH माइनस ऐड अయింది. दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन. सो दिस इज कॉल्ड methyl alcohol. Methyl alcohol. Okay, like that. Now see here. Another example is there. Here, what is its name? You know very well. Benzene is treated with NO2 plus nitronium ion. What is NO2 plus? Nitronium ion. NO2 plus is called nitronium ion. NO2 plus nitronium ion is called nitronium ion. Okay, so it is generated from concentrated sulfuric acid H2SO4 and concentrated nitric acid HNO3. This mixture is called nitration mixture. This is called nitration mixture. This nitration mixture produces NO2 plus nitronium ion. So nitronium ion के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? Reagent concentrated sulfuric acid and concentrated nitric acid in 1:1 ratio. 1:1 ratio. Okay, that produces NO2 plus. अभी देखो यहाँ पर बेंजीन है. इसी तरह बेंजीन, यू नो वेरी वेल, बेंजीन मीन्स यहाँ पर कार्बन एटम्स होते हैं ना, कार्बन कार्बन कार्बन, 6 कार्बन एटम्स, isn't it? Alternated double bonds. Each carbon contains one hydrogen atom, one hydrogen, like this, isn't it? यहाँ पर ये H प्लस बाहर निकल के यहाँ पर NO2 प्लस ऐड हो जाएगा. Okay, so that reaction can be written like this. See, benzene plus NO2 plus gives rise to NO2 ऐड हो गया. यहाँ पर क्या होते हैं? रिमेनिंग एटम्स, those should be hydrogen atoms. उसका लिखने का जरूर नहीं. हाइड्रोजन एटम्स ఉన్నట్టు చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. దట్ ఇంప్లైస్ ఉన్నట్టు. ओके, सो यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल के NO2 अटैच हो गया. मीन्स एक हाइड्रोजन बाहर आके उसके प्लेस में NO2 अटैच हो गया. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड which reaction? Substitution reaction. It is called nitrobenzene. Its name is nitrobenzene. Okay, benzene converted into nitrobenzene when treated with nitration mixture. Nitration mixture means concentrated HNO3, concentrated sulfuric acid in 1:1 ratio. बस हो गया. Okay, that is just substitution. ఒకటి పోయి ఇంకోటి రావటం, ఒక ఆటం కానీ గ్రూప్ కానీ పోయి ఇంకొక ఆటం గ్రూప్ రావటం. ఓకే, అంతవరకే. Now addition reactions. Second one is addition reactions.
देखो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन मीन्स एडिशन शीट, एडिशन पेपर आपको मालूम है ना, एग्जाम में मेन आंसर बुकलेट होता है, उसके साथ साथ और एक पेपर होने के लिए लेक्चरर को इन्विजिलेटर को पूछने से वो एक पेपर देता है, एडिशनल शीट बोलते हैं, वो एडिशनल शीट मिला के टाई अप कर देते हैं। सो इसी तरह एक मीन्स एक मेन बुक बंडल को दूसरा ऐड हो गया, इसी तरह एक मॉलिक्यूल को दूसरा मॉलिक्यूल आके ऐड हो जाएगा, means two molecules combine together and forms a single molecule. Okay, this is called combination reaction, chemical combination. एक मॉलिक्यूल को दूसरा मॉलिक्यूल ऐड होने वाला रिएक्शन बोलते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं उसे। Okay, see here, these are characteristic reactions of compounds which contain multiple bonds, carbon carbon double bond और carbon carbon triple bond जिसमें होते हैं वो compounds exhibit करते हैं addition reactions. Substitution reactions given by saturated compounds, alkanes, alkyl halides, aromatic compounds, and addition reactions given by unsaturated compounds. These are unsaturated compounds. Unsaturated means double bonded compounds and triple bonded compounds, carbon carbon. Okay, these are the characteristic reactions of compounds with multiple bonds. An addition reaction involves combination between two reacting molecules. Combination, दो भी मिल जाते हैं, ये एक compound है, ये दूसरा वाला compound है, दो भी club हो जाते हैं. Okay, in such way that all the parts of the adding reagent appears in the product. देखो ये तो attacking reagent है यहाँ पर HBr. ये HBr total compound में होता है. Total, how many carbon atoms are there? Here, 2 carbon atoms. Here also 2 carbon atoms. How many hydrogens? 2, 3, 4, 5 hydrogens. 3, 4, 5 hydrogens are there. Means ये hydrogen भी इसमें आ गया, ये bromine भी इसमें आ गया. Okay. So, see here, both the compounds combine together and forms a single compound. Such type of reaction is called addition reactions. Okay. See, just इसका मीनिंग मालूम होना चाहिए, बस उतना ही है यहाँ पर. एडिशन रिएक्शन मीन्स एक कंपाउंड को दूसरा कंपाउंड आके ऐड हो जाना, दैट इज एडिशन रिएक्शन. तो विच कंपाउंड्स गिव्स सच टाइप ऑफ रिएक्शंस मीन्स alkenes and alkynes are unsaturated compounds, are the compounds which contain double bond, triple bond exhibits such type of reactions. Example, note down this example there. Suppose this is ethylene, CH2 double bond CH2 plus HBr. HBr एक ऐड हो, बॉन्ड ब्रेक होके इधर एक H इधर Br ऐड हो जाएगा. अभी सिंगल बॉन्ड होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, CH3 CH2 Br. Okay, like that. Ethyl bromide is formed. Its name is ethylene. It is hydrogen bromide. It is called ethyl bromide. Okay, is it addition reaction or substitution? Addition. తెలుస్తుంది కదా क्लियर गा. ये मॉलिक्यूल का के ये ऐड हो गया. अगर देखो यहाँ पर एक सिखाना यहाँ पर, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज सी हियर, सपोज सी डबल बॉन्ड सी है ना, यहाँ पर इथिलीन इसी प्रकार है, इसी तरह है इसका स्ट्रक्चर, इसे HBr ऐड कर दिए, ये HBr H प्लस Br माइनस जैसा डिवाइड होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होके सपोज इलेक्ट्रॉन्स पुल्ड टुवर्ड्स दिस कार्बन, इधर जाने से यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो गया ना मैकेनिज्म, ये प्लस हो जाएगा, ये H प्लस आके यहाँ पर अटैच होगा माइनस के पास. ओके, ये Br మైనస్ यहाँ पर అటాచ్ होगा. ఏంటి తెలిసిందా లేదా? ఏమైంది, ఈ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ అటు వెళ్ళిపోతే ఇది మైనస్ అయింది, ఇది లాస్ అయింది ఎలక్ట్రాన్ కదా. సో ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్, సో పాజిటివ్ ఛార్జ్ దగ్గర నెగిటివ్ ఛార్జ్ అటాచ్ అవుతుంది, అలాగే ఇది నెగిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చి అటాచ్ అవుతుంది. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, CH2 Br కదా, Br इटైనా ऐड అవ్వచ్చు అటైనా ऐड అవ్వచ్చు, ఎలక్ట్రాన్స్ इधर भी जा सकते हैं और इधर भी शिफ्ट हो सकते हैं. ओके, so depending upon the shifting of electrons and HBr are attached to the carbon atoms और single bond, ये क्या हो गया, अभी ये Hb ऐड होने से CH3 हो गया, so CH2Br CH3, it is called ethyl bromide. ethyl bromide is formed. देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड C H इसी प्रकार है, H यहाँ एक बॉन्ड ब्रेक होने से इसके लिए 1 2 3 बॉन्ड्स, सिर्फ 3 बॉन्ड्स हो गए एक बॉन्ड ब्रेक होने के बाद. ये कार्बन को भी
इसको एक बॉन्ड है, इधर एक बॉन्ड है, इधर एक बॉन्ड है, 3 बॉन्ड्स और 4th बॉन्ड आना पड़ेगा। इसीलिए एक तरफ ये हाइड्रोजन से और Br से, ये हाइड्रोजन से और Br से अटैच होके नया बॉन्ड फॉर्म कर देता है। एक बॉन्ड डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड ब्रेक होने से उधर इधर दो तरफ ऐड होना पड़ेगा। बॉन्ड ब्रेक अयिंदी అంటే అటు ఇటు యాడ్ అవ్వాలి। बॉन्ड ब्रेक हो गया तो उधर इधर जरूर ऐड होता है। सो दिस इज व्हाट यू कॉल एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन बनने के लिए कंपाउंड में डबल बॉन्ड तो चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड तो चाहिए, लाइक दैट। ओके, सो दैट इज अबाउट व्हाट यू कॉल एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर इथिलीन रिएक्ट्स विथ HBr फॉर्म CH3CH2Br। और एक रिएक्शन देखो एसिटाल्डिहाइड, ये भी बताऊंगा मैं यहाँ पर। एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है? एसिटाल्डिहाइड। अनदर एग्जांपल फॉर एडिशन रिएक्शन, एसिटाल्डिहाइड फॉर्मूला इज CH3CHO, CH3CHO aldehyde, that one CHO group प्लस HCN हाइड्रोजन साइनाइड ऐड कर दिया मैं। देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर पुश होते हैं। सो दैट इज विच इफेक्ट? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट? विच इफेक्ट टेक्स प्लेस देयर? नो इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट मीन्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टू ट्रांसफर। ओके, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। लास्ट क्लास చెప్పాను, लास्ट क्लास में पढ़ा दिया। ये तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू डिमांडिंग ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, इजंट इट? सो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए। ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा? CH3C सिंगल बॉन्ड होगा, वो पे माइनस आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स उधर जाके। ये हाइड्रोजन इसी प्रकार है, इसके ऊपर पास आ जाएगा, है ना। अभी HCN ऐड हो गया, ये HCN इसी तरह स्प्लिट होता है, H प्लस CN माइनस। अभी देखो CN माइनस किधर ऐड होता है? CN माइनस नेगेटिव चार्ज है ना, कार्बन के पास अटैच होता है। H प्लस किधर ऐड होता है? वो के प्लस अटैच होता है। एज ए रिजल्ट कंपाउंड क्या हो जाएगा? एज ए रिजल्ट कंपाउंड क्या फॉर्म होगा? गिव्स राइज टू CH3C। यहाँ पर हो गया कि ये OH, यहाँ पर ये हो गया, एक H है और CN भी अटैच होगा, H है और CN। ओके, और यू कैन राइट ये कंपाउंड इसी तरह भी लिख सकते हैं, CH3CHOH CN, CH3CH, ये दो मिला के लिखा, ये दो CHOH ऊपर वाला OH, नीचे है ना जो CN यहाँ पर लिखा। इट इज कॉल्ड, ये एसिटाल्डिहाइड है ना मॉलिक्यूल, इट इज एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड से आ गया, इसीलिए एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बोलते हैं इसे, साइनोहाइड्रिन। ओके, साइनोहाइड्रिन जनरली CnOH रहने से साइनोहाइड्रिन्स बोलते हैं। ये एसिटाल्डिहाइड से फॉर्म हो गया, इसीलिए एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ओके, लाइक दैट। So is it acetaldehyde reacts with HCN and forms acetaldehyde cyanohydrin? The reaction is dash. Addition reaction, substitution reaction, elimination reaction or rearrangement reaction? Which reaction? Addition reaction. Okay, like that. So that is about addition reaction. And elimination reaction. इसमें होता है कि elimination reaction, eliminate करना, निकाल देना, eliminate करना। सो दो साइड बाय साइड कार्बन में से एटम्स और ग्रुप्स को निकाल देना, और समटाइम्स सेम कार्बन के ऊपर 2 ग्रुप्स और 2 एटम्स निकाल देना। सपोज कंपाउंड इज लाइक दिस, सपोज इसी प्रकार है कंपाउंड, सपोज कंपाउंड इज लाइक दिस, CH3 सिंगल बॉन्ड CH BR H, साइड बाय साइड कार्बन, एडजेसेंट कार्बन, ये कार्बन पे ये कार्बन पे, ये एटम दो भी निकाल देना, रिमूव करना। और समटाइम्स ग्रुप हो सकते हैं यहाँ पर, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, OH ग्रुप, CHO ग्रुप, समटाइम्स ग्रुप्स, एटम्स और ग्रुप्स। साइड बाय साइड कार्बन एटम्स मींस एडजेसेंट, और समटाइम्स एक ही कार्बन के ऊपर जो होते हैं
ए एटम ये दो भी निकाल देना. ఎలిమినేషన్ పక్క పక్క కార్బన్ల మీద కానీ సేమ్ కార్బన్ మీద కానీ ఉన్నటువంటి రెండు ఆటమ్స్ కానీ రెండు గ్రూప్స్ కానీ తీసేయడాన్నే ఏమంటారు? एलिमिनेशन. साइड बाय साइड कार्बन के ऊपर और एक ही कार्बन के ऊपर जो भी एटम्स है वो एटम्स और ग्रुप्स है वो ग्रुप्स को निकाल देना ही बोलते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेट करना. एलिमिनेट करने से क्या फॉर्म होता है सर? एलिमिनेट करने से न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है. See here, compound is like this: CH3, CH and Br. Okay. अल्कोहलिक KOH. अल्कोहलिक KOH से हीट करने से क्या होता है? ये H और Br दो मिलके निकल जाता है, HBr. ओके, हाइड्रोजन ब्रोमाइड जैसा निकल जाता है. और देखो यहाँ पर ये निकल जाने से एक बॉन्ड कम हो गया ना कार्बन को. ओनली 3 बॉन्ड्स होते हैं, 1 2 3 बॉन्ड्स होते हैं. ये कार्बन को भी 3 बॉन्ड्स होते हैं, 1 2 3 बॉन्ड्स होते हैं. हाँ सॉरी 1 2 3 ये बॉन्ड निकल जाता है ना, ये बॉन्ड निकल जाता है. इसको 3 बॉन्ड्स है ये कार्बन को, और ये कार्बन को भी 3 बॉन्ड्स है. और फोर्थ बॉन्ड कैसा आएगा? ये निकल जाने से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, दो शेयर करके डबल बॉन्ड बना देता है. ओके, सो एज ए रिजल्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2 फॉर्म होता है. व्हाट इज इट्स नेम? इथिलीन. सी हियर, साइड बाय साइड कार्बन पे दो एटम्स और ग्रुप्स निकलने से नया बॉन्ड फॉर्म होता है. नया बॉन्ड फॉर्म होता है. अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होने से, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड ब्रेक होने से उधर इधर एक ग्रुप सब ग्रुप ऐड हो जाता है. और ट्रिपल बॉन्ड होने से भी ये बॉन्ड ब्रेक होने से इधर एक्स ऐड हो गया, इधर भी एक्स ऐड हो गया. और भी सैचुरेशन है, ये भी ब्रेक होने से इधर भी एक्स इधर भी एक्स ऐड हो गया, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा. फाइनली डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो भी सिंगल बॉन्ड बन जाएगा फाइनली. ओके, लाइक दैट. सो एलिमिनेशन रिएक्शन मीन्स, इसका मतलब ये तो देखो यहाँ पर दीज रिएक्शंस आर ऑपोजिट टू एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन का ऑपोजिट है. An elimination reaction is one that involves the loss of two atoms or group of atoms from the same or adjacent atoms of a substance, leading to the formation of a multiple bond. Finally forms multiple bond. Okay. So example is ethyl bromide. Alcoholic KOH लिखना है यहाँ पर. Alcoholic KOH, not just KOH. Aqueous रहने से अल्कोहल बन जाएगा. अल्कोहलिक होना पड़ेगा यहाँ पर, दैट इज इंपॉर्टेंट. अल्कोहलिक KOH लिखो. माइनस HBr गिव्स राइज टू इथिलीन. समझी? एलिमिनेशन रिएक्शन. In elimination reaction, compound contains multiple bonds. Final compound, formed compound. In addition reaction, bonds present in reactants breaks down, isn't it? एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में जो भी है मल्टीपल बॉन्ड्स वो ब्रेक होके उधर इधर ऐड होता है. एडिशन रिएक्शन. मल्टीपल बॉन्ड में उधर इधर दो एटम्स और ग्रुप्स निकलने से न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है, इसलिए मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है प्रोडक्ट में. ओके, राइट. अभी देखो नेक्स्ट वन इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन. लास्ट वन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन. व्हाट इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन? रीअरेंजमेंट रिएक्शन मीन्स मॉलिक्यूल में जो भी एटम्स है सेम एटम्स हो गए रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट्स में भी सेम एटम्स हो गए, लेकिन पोजीशन में चेंज होता है. इधर वाला उधर, उधर वाला इधर आ जाता है. సో అటు నుంచి ఇటు అటు వెళ్తాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీఅరేంజ్మెంట్. జస్ట్ నథింగ్ బట్ రీఅరేంజ్మెంట్ రియాక్షన్. ఓకే, రీఅరేంజ్మెంట్ రియాక్షన్. See here, in these reactions a molecule undergoes a reorganization of its constituent parts under suitable conditions to form the new product with different properties. ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इसमें एटम्स जितने होते हैं सेम, इसमें भी सेम एटम्स होते हैं, इसके प्रॉपर्टीज अलग होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज भी अलग होते हैं. सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड डैश isomers, isn't it? Compounds having same molecular formula but exhibits different physical and chemical properties are called isomers, and the phenomenon is called isomerism. You know very well, isn't it? See here, okay, the compounds formed as a result of rearrangement is an isomer of the compound undergoing the reaction.
पहला वाला का आइसोमर बन जाता है वो. ओके, सो ये सब लिखने का जरूर नहीं, जस्ट समझे तो बस आप लोग దాన్ని అర్థం చేసుకుంటే చాలు. రీఅరేంజ్మెంట్ అంటే రీఆర్గనైజేషన్ అవుతాయి ఆటమ్స్. ఆటమ్స్ అన్నీ అలాగే ఉంటాయి, స్ట్రక్చర్ మారిపోతుంది, ప్రాపర్టీज మారిపోతాయి, आइसोमर्स फॉर्म होता है. इसमें रीअरेंजमेंट में आइसोमर्स फॉर्म होते हैं. इसे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, लुक एट द बोर्ड. फर्स्ट एग्जाम्पल दिस वन, CH3C CH3 CH3 HHH है. व्हाट इज इट्स नेम? कैन यू से व्हाट इज इट्स नेम? देखो 1 डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, इसीलिए कार्बन 1 कार्बन आइटम को देना, नॉट हाइड्रोजन आइटम्स. नंबरिंग 1 2 3, यहाँ पर भी है 4 कार्बन आइटम्स. ओके, 4 कार्बन आइटम्स है, इसीलिए रूट वर्ड होता है कि ब्यूट. डबल बॉन्ड है, कहाँ है? 1 के पास है. ब्यूट 1 इन, ये पूरा हाइड्रोकार्बन, ओनली हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन है तो सेकेंडरी सफिक्स ई. ओके, ब्यूटीन. 3 के ऊपर क्या है? मिथाइल ग्रुप्स. हाउ मेनी मिथाइल ग्रुप्स? 2 मिथाइल ग्रुप्स. प्रेजेंट ऑन विच कार्बन आइटम? 3rd कार्बन. सो इसीलिए 2 टाइम्स है ना, यहां पर एक, यहां पर एक, 2 बार लिखना पड़ेगा. ये 3 मीन्स 3 3 2 है ना, इसीलिए डाई. विच ग्रुप्स? मिथाइल ग्रुप्स. 3 3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन. 3 3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन. when 3 3 dimethyl bute 1 ene is treated with H plus means एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम में ट्रीट करने से देखो स्ट्रक्चर बदल गया. क्या बन गया यहाँ पर? 1 2 3 4 कार्बन आइटम्स. यहाँ पर 2 पे एक है मिथाइल ग्रुप, 3 पे एक आ गया. यहाँ पर सेम कार्बन कंटेंस 2 मिथाइल्स, हियर 2 डिफरेंट कार्बन आइटम्स कंटेंस మిథైల్ గ్రూప్స్. ఏమై తేడా తెలిసిందా? ఒకే కార్బన్ మీద ఇక్కడ 2 మిథైల్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ ప్రక్క ప్రక్క కార్బన్స్ మీద మిథైల్ గ్రూప్స్ వచ్చాయి, స్ట్రక్చర్ మారిపోయింది. అవునా? సో వాట్ ఇస్ ఇట్స్ నేమ్ నౌ? 1 2 3 4 వేస్తే వాట్ యు కాల్? బ్యూట్ కదా. 4 కార్బన్ ఐటమ్స్ 1 2 3 4 బ్యూట్. డబుల్ బాండ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఎట్ సెకండ్ కార్బన్, బ్యూట్ 2 in hydrocarbon E and 2 3 2,3 dimethyl 2 3 dimethyl bute 2 ene is formed. Okay, first initial compound is 3 3 dimethyl bute 1 ene, final compound is 2 3 dimethyl bute 2 ene. डिफरेंस होता लेदा? डिफरेंस है कि या नहीं? कंपाउंड के स्ट्रक्चर में है, इसलिए इसके प्रॉपर्टीज एक किस्म के होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज अनदर किस्म के होते हैं. So దీని ప్రాపర్టీస్ వేరు, దాని ప్రాపర్టీస్ వేరు. Such type of compounds, molecular formula is the same. Carbon atoms, hydrogen atoms, यहाँ पर जितने होते हैं यहाँ पर भी कार्बन एंड हाइड्रोजन आइटम सेम होते हैं. That is why those compounds are called isomers. Compounds having same molecular formula but exhibits different physical chemical properties are called isomers. Okay, हो गया. Next example देखो यहाँ पर. Okay, see here, what is its name? Butane 1 2 3 4 butane, isn't it? And treated with AlCl3 heating in the presence of catalyst AlCl3 on heating, strong heating forms isobutane, isn't it? What is its IUPAC name? Isobutane का IUPAC name क्या है? क्या श्रुति? Are you following? Okay. सो आइसोब्यूटेन का नाम क्या है? 1 2 3 ना, 2 मिथाइल. बोलो 2 मिथाइल प्रोप. 3 कार्बन आइटम्स है ना, इसीलिए प्रोप. सिंगल बॉन्ड है ना, एन. हाइड्रोकार्बन है ना, ई. 2 मिथाइल प्रोपेन. आइसो कब बोलते हैं? लास्ट बट 1 कार्बन के ऊपर CH3 रहने से आइसो. सपोज कंपाउंड इज लाइक दिस, लास्ट बट 1 कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स रहने से इसी प्रकार, that is called secondary butyl. secondary butyl बोलते हैं. ये secondary कार्बन है ना, ये secondary butyl 1 2 3 4 secondary butyl. This is isobutane. Iso neo means, what is neo? Neo means 4 sides होना पड़ेगा. Iso, this is iso, this is neo butane. Okay, neocarbon, or this is called quaternary carbon or neocarbon. Quaternary carbon. Okay, now look at the board here.
So butane converted into isobutane in the presence of dash anhydrous AlCl3 on heating. Okay. So these two are dash isomers or not? Okay, isomers. What are isomers? What are isotopes? What are isobars? What are isotones? Isodiaphers. What are isotopes? Compounds having same atomic number, different mass numbers are called isotopes. Atoms of same element, H, H, H. Atoms of same element, atomic number same, mass numbers are different. Isotopes. Isotopes. Isobars means సో దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ థింగ్. ఇప్పుడు అవన్నీ పెట్టుకుంటే మళ్ళీ డివైడ్ అయిపోతాం మనం కదా, అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో వస్తాయి అవన్నీ. ఓకే, ఇవేమో ఐసోటోప్స్ కాదు, ఐసోబార్స్ కాదు, ఐసోటోన్స్ కాదు. హియర్ దే ఆర్ ఐసోమర్స్. ओके, सो लाइक दैट. क्या है ये रिएक्शन अभी बताया मैं, वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ना. रीअरेंजमेंट इसी तरह अरेंजमेंट है इसमें इसी तरह अरेंजमेंट है. रीअरेंजमेंट हो गया, रीऑर्गेनाइजेशन हो गया एटम्स. सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड रीअरेंजमेंट रिएक्शंस. ओके, हो गया, दैट्स एनफ, ओवर. ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ chemical reactions are present in organic chemistry? 4 types. What are those 4 types? Substitution, addition, elimination and rearrangement. Okay, substitution reactions given by dash compounds. Saturated compounds. Saturated compounds means carbon-carbon single bonded compounds, means alkanes, aromatic compounds, alkyl halides, and what you call addition reactions given by unsaturated compounds, alkenes and alkynes. Okay, generally. Okay, in addition reactions, what happens? Bonds present in the compound breaks down in between the carbon atoms, double bond or triple bond. Finally, saturated compound, it converted into saturated. Double bond break అయిపోయి ఒక బాండ్ మిగులుతుంది, సాచురేట్ అయిపోతుంది, ఫైనల్ గా సింగిల్ బాండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో in elimination reaction what happens? Atoms or groups present on the same atom or adjacent atoms escapes out and forms a new bond in between two carbon atoms. In rearrangement reactions, reorganization of atoms takes place and forms isomers. Okay, हो गया, right? That is about types of reactions. Organic chemistry में जो भी reactions आते हैं वो reactions पूरे सब इसी तरह के होते हैं. अभी हम पढ़ेंगे very very important hydrocarbons. Next topic. General organic chemistry is over. Next one is hydrocarbons. देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन्स. ओके, ఇక్కడ నుంచి జాగ్రత్తగా వినాలి, ప్రాక్టీస్ करना. आपके पास जो भी बुक है वो बुक लेके प्रैक्टिस करना आप. హైడ్రోకార్బన్స్ ఎక్కడుంది? డిజిటల్ రైట్, ఇక్కడ ఉంది కదా. హైడ్రోకార్బన్స్ DP షీట్. Right, very good. Now, very important, very interesting one. अभी alkanes पढ़ेंगे. राइट, వెళ్ళైతే ओके, alkanes पढ़ेंगे अभी. क्या हो गया इधर घूम रहा है वो. राइट, सी alkanes. So alkanes, मैं इसके लिए थोड़ा इंफॉर्मेशन दूंगा मैं. पुट हेडिंग देयर alkanes. शिट, alkanes. What is the general formula of alkanes? Alkanes means saturated hydrocarbons. Saturated or unsaturated? Saturated.
saturated hydrocarbons. Hydrocarbons are called alkanes. Okay. जनरल फार्मूला ऑफ alkanes. हाइड्रोकार्बन्स का मीनिंग क्या है पहले वो बताओ. What are hydrocarbons? Compounds containing only carbon and hydrogen atoms. Only carbon and hydrogen atoms are called hydrocarbons. Hydrocarbons. And what are carbohydrates? किसको बोलते हैं carbohydrates? మరి ఏం వచ్చు మీకు? Carbohydrates means compounds containing carbon, hydrogen along with oxygen. कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जिसमें होते हैं वो कंपाउंड्स को बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, these are carbohydrates. Okay, give some examples of carbohydrates. Glucose. What is the formula of glucose? C6H12O6. Carbon, hydrogen, oxygen. Is it carbohydrate or hydrocarbon? Carbohydrate. This one is carbohydrate. Hydrocarbon का example. Hydrocarbon అంటే కార్బన్, హైడ్రోజన్ ఉండాలి. మీథేన్, ఈథేన్, C2H6. ఇథిలీన్, C2H4, ఎసిటిలిన్, C2H2, ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. ఓన్లీ కార్బన్ అండ్ హైడ్రోజన్. ఓకే, నోట్ చేసుకోవాలి. మార్జిన్ ఉండాలి బుక్లో. ఆ మార్జిన్లో అవన్నీ రాసుకోవాలి. మాకు తెలుసా అనుకుంటే అవి అప్పటికప్పుడు తెలుస్తాయి, తర్వాత వెళ్ళిపోతాయి మైండ్లో నుంచి. ओके, प्रतिदि रासकुंटू ఉండాలి, వింటూ ఉండాలి. हर एक भी लिखना, पेपर पे लिखना, बुक में लिखना. सुनने से नहीं आएगा, लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा. ओके, ये सब इजी है सीखने के लिए, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होता है. ओके, नाउ अभी देखो व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ alkanes. alkanes का जनरल फार्मूला क्या है? CN, जनरल फार्मूला ऑफ alkanes. CnH2n plus 2. CnH2n plus 2. General formula. Okay. And alkanes are collectively, commonly called as dash. Paraffins. Alkanes are also called as. Alkanes are also called as. Paraffins. Paraffins. Why these compounds are called paraffins? पैराफिन्स का मतलब क्या है? पैराफिन्स मीन्स लेस रिएक्टिव. They do not react with acids. They do not react with bases. They do not react with the powerful oxidizing agents. Do not react with reducing agent. Okay, so that is why they are called paraffins. Less reactive. కార్బన్ కార్బన్ సింగిల్ బాండ్ ఉండి 4 బాండ్స్ కూడా सैचुरेट అయి ఉంటే ये तो लेस रिएक्टिव होते हैं. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होके सैचुरेशन है तो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन. ऑलरेडी स्टेबिलिटी हो गया, 4 बॉन्ड्स आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. 1 2 3 4 बॉन्ड्स है ना, 4 into 2 एक पेयर होता है एक बॉन्ड में. 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ऑक्टेट रूल आ गया, इसे स्टेबिलिटी बन गया और दूसरा केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होने का जरूरत तो नहीं है उसे. That is why alkanes are more stable. That is why less reactive. So they are called paraffins. Okay. Now in alkanes, carbon atom undergoes dash. Carbon atom undergoes which hybridization? Undergoes sp3 hybridization. All carbon atoms undergo sp3 hybridization. सिंगल बॉन्ड्स ఉన్నట్లయితే कब बोलते हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड्स रहने से sp3 कार्बन. इसी तरह कार्बन के पास 1 2 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड रहने से sp2 कार्बन. कार्बन के पास इसी प्रकार रहने से मीन्स 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड्स sp कार्बन. Isn't it? ओके, रास्को అవన్నీ తెలియపోతే రాసుకుంటూ ఉండాలి. अगर नहीं मालूम हुआ तो लिखो 1 बॉन्ड 2 3 4 4 बॉन्ड्स है, 4 भी सिग्मा बॉन्ड्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन. यहाँ पर देखो 1 2 3
इसमें एक ही सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है इसमें वाला। सो 1 2 3 सिग्मा एंड 1 पाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एक सिग्मा 2 सिग्मा, रिमेनिंग टू आर 2 पाई बॉन्ड्स। यहाँ पर एक सिग्मा रिमेनिंग टू आर पाई बॉन्ड्स, 2 सिग्मा 2 पाई sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम बोल सकते हैं। ओके, सो कार्बन एटम अंडरगोस sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो शेप क्या होता है? इफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज इन्वॉल्व्ड, शेप शुड बी डैश। क्या होता है? शेप शुड बी शेप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल। ओके, एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ, CC सिंगल बॉन्ड लेंथ हाउ मच? 1.54 आंगस्ट्रॉम यूनिट्स होता है और 154 पिकोमीटर्स होता है। एंड CH मीन्स ये सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन को H अटैच हो के है तो CH बॉन्ड लेंथ, CH बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 1.11 आंगस्ट्रॉम यूनिट्स, 1.11 आंगस्ट्रॉम यूनिट्स और 111 पिकोमीटर्स। ओके, सो ये याद रहना चाहिए यहाँ पर। ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, 1.54 आंगस्ट्रॉम यूनिट्स, ये तो इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड एंगल कितना होता है? बॉन्ड एंगल इन आल्केन्स इज डैश। sp3 हाइब्रिडाइजेशन ఉంటే బాండ్ యాంగిల్ ఏంటి? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल होने से 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, isn't it? Like that. Okay, now 109 degrees 28 minutes. अभी देखो, now look at the board. Now here methods of preparation, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, साइड हेडिंग, alkanes preparation, methods of preparation of alkanes. alkanes में see here जनरल फार्मूला क्या होता है इसका? CN H2N प्लस 2 है ना। पहला वाला क्या होगा? ఫస్ట్ ఏమవుతుంది? ఏం లేదు, n దగ్గర 1 రాసుకో, C1 H2 into 1 plus 2 ఏమైంది అప్పుడు? C1 H2 into 1, 2 plus 2 4, అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ CH4. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మీథేన్. ఇప్పుడు 2 రాసుకో అక్కడ n దగ్గర, ఇక్కడ n ఎంత రాసావు, ఇక్కడ కూడా సేమ్ H2 into 2 plus 2 क्या होगा ये? C2 H2 into 2 4, 4 plus 2 6। और नेक्स्ट वाला क्या आएगा? C3 H2 into 3 plus 2 C3 H कितना होगा? 2 into 3 6 7 8 है ना। అలా వస్తాయి సిరీస్ ఇదంతా. దిస్ సిరీస్ ఈస్ కాల్డ్ హోమోలోగస్ సిరీస్. దిస్ ఈస్ ఆల్కేన్స్. ఆల్కేన్స్ జనరల్ ఫార్ములా. దిస్ ఈస్ ఇలా వచ్చేది హోమోలోగస్ సిరీస్. హోమోలోగస్ సిరీస్. In homologous series, difference between two adjacent compounds is dash. రెండు ప్రక్క ప్రక్క కార్బన్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది? మాలిక్యులర్ వెయిట్. కార్బన్ एक डिफरेंस है and hydrogens दो डिफरेंस है. CH2 difference is CH2 difference between successive compounds, side by side compounds. And molecular formula difference is CH2 and molecular weight difference is dash. CH2 है ना, कार्बन 12, 2 हाइड्रोजन्स कितना होगा? 2, दैट इज 14. मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंस 14 होगा. मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंस. मॉलिक्यूलर फार्मुला डिफरेंस CH2 ఏమై తెలుస్తుందా? ఓకే, ఇది ఒక సిరీస్. అలాగే ఆల్కీన్స్ అంతా ఒక సిరీస్ వస్తుంది. ఆల్కీన్స్ एक सीरीज आएगा, आल्काइन्स एक सीरीज आएगा, इसी प्रकार. ओके, सो नाउ लुक एट द बोर्ड. दिस इज मीथेन. मीथेन CH4, दूसरा वाला C2H6 ईथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, इसी तरह सीरीज आएगा. ओके, CH2 डिफरेंस है. सो ऑल दीज कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सेम जनरल मेथड्स. ఒక సిరీస్ లో ఉన్న కాంపౌండ్స్ అన్నిటిని ఒకే जनरल मेथड तो तैयार చేయొచ్చు. मीथेन जिस प्रकार तैयार करते हैं उसी प्रकार रिमेनिंग कंपाउंड्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके,
So same general methods. All each compound is called homolog. आप जानते हैं होमोलोग बोलते हैं एक एक कंपाउंड को होमोलोग. All homologs exhibit similar chemical properties or same chemical properties, but regular gradation in their physical properties. There is a gradation. There is a gradation. Gradation means variation. Gradation in their physical properties. Physical properties में difference होता है. First five, for example, approximately first five gases, next five liquids, उसके बाद जो भी आता है वो सब solid हो जाएंगे molecular weight increase होने से. మొదటి 5 తేలిగ్గా ఉంటాయి గ్యాసెస్, తర్వాత లిక్విడ్స్, తర్వాత సాలిడ్స్ అవుతాయి. క్రమమైన మార్పు ఉంది ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్లో. గ్యాస్, లిక్విడ్, సాలిడ్, అది ఫిజికల్ స్టేట్. కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ మాత్రం సేమ్గా ఉంటాయి అన్నిటికీ. ఓకే, సో ఇది ఒక హోమోలోగస్ సిరీస్. ఓకే, సేమ్ జనరల్ మెథడ్స్తో తయారు చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఆల్కేన్స్ తయారు చేయడానికి సేమ్ జనరल मेथड्स. क्या मेथड्स यूज करते हैं आल्केन्स प्रिपेयर करने में, वही पढ़ेंगे अभी. ओके, नाउ लुक एट द बोर्ड. फर्स्ट वन है कि रिडक्शन. देखो इंपॉर्टेंट है, अभी सब्जेक्ट में डेप्थ में जा रहे हैं हम. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हैलोजन एटम. रिडक्शन करके तैयार करते हैं. रिडक्शन मीन्स क्या है, इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन रिडक्स रिएक्शन में भी आएगा. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडक्स रिएक्शन लो वस्तुंदी. क्या है रिडक्स रिएक्शन में? ऑक्सीडेशन रिडक्शन. बताओ. ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन and removal of electrons. Increasing in oxidation state is called oxidation state. Is called oxidation. Reduction means removal of oxygen, addition of hydrogen, addition of electrons, decreasing in oxidation state. ये कहाँ आएगा? रेडॉक्स रिएक्शन के पास आएगा. रेडॉक्स रिएक्शंस. ओके, इंपॉर्टेंट. ओके, सो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन का मतलब क्या है, किसको जनरली यहाँ यूज करते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ पर सेम जो है एडिशन ऑफ रिडक्शन है ना, नॉट ऑक्सीडेशन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सेम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. और रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन and halogen means more electronegative. Removal of more electronegative atom is also called as reduction. यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन are more electronegative atom. Or addition of more electronegative atom is called addition of more electronegative atoms, nitrogen, oxygen, halogen is called oxidation. उसका रिवर्स में. ఏమై అర్థమవుతుందా నీకు? స్పీడ్గా చెప్తున్నానా? ఫాలో అవ్వాలి మరి, తప్పదు. ఎందుకంటే చాలా సిలబస్ ఉంది. ఓకే, చాలా సిలబస్ ఉంది. ఓకే, क्या समझ रही है? अरे పోయింది అది. ओके, మళ్ళీ రాదులే. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ रिडक्शन करके तैयार करते हैं. रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन करके आल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसे रिडक्शन करके. रिडक्शन मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करके उधर इधर एक बॉन्ड ब्रेक करके इधर इधर. एडिशन रिएक्शन दिस वन. यहाँ पर दूसरा बॉन्ड है, ये भी ब्रेक करके इधर इधर ऐड करने से आल्केन बन जाएगा. అంటే रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एक तरीका है. रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स. हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स है मीन्स COOH, CHO मीन्स C डबल बॉन्ड O कीटोन, COX, OL हैलाइड्स, आल्काइल हैलाइड्स X. ये सबको हाइड्रोकार्बन को रिडक्शन करके भी प्रिपेयर कर सकते हैं. నోట్ చేసుకో, ఇది బోర్డు మీద కనపడేది ప్రతిదీ నోట్ చేసుకోవాలి, స్పీడ్గా వినాలి. सब नोट्स प्रिपेयर करो, नोट्स लिखना, अपना आप खुद नोट्स प्रिपेयर कर लो. ये सब मटेरियल्स में होते हैं, टेक्स्ट बुक्स में होते हैं, सब किस्म के बुक्स में होते हैं, लेकिन आप अपना खुद नोटबुक तैयार करना, वो याद रह जाएगा आपको. ओके, राइट. सो ये तो रिडक्शन है, मीन्स रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स. जो हाइड्रोकार्बन से बनते हैं उसको बोलते हैं कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव. हाइड्रोकार्बन में सपोज यहाँ पर ऐसा है, इसी तरह CH4 है, CH4 मीथेन. ये CH4 इसी प्रकार होता है. CH4
ये हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पर COOH रख दिया, ये हाइड्रोकार्बन बेसिकली, ये रखने से क्या हो गया, CH3 COOH, इसे बोलते हैं कि हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव, ये हाइड्रोकार्बन है उससे फॉर्म हुआ ये। అలాగా చివర్లో COOH CHO CO COX X కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఆల్డిహైడ్ కీటోన్ అండ్ OL హ్యాలైడ్ అండ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ RX, ఓకే, దాని నుంచి తయారు చేయొచ్చు. సో నౌ फ्रॉम alkenes and alkynes, देखो यहाँ पर from alkenes and alkynes. So when alkenes and alkynes are treated with hydrogen in the presence of catalyst, catalyst के in the presence of catalyst, देखो, so when alkenes and alkynes are completely hydrogenated, यहाँ पर थोड़े टर्म्स आएंगे, हाइड्रोजिनेशन, हैलोजिनेशन, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, okay, decarboxylation. Do you know meaning of those terms? No, मेरे को तेलीदु, मैं अभी पढ़ाऊंगा, पहले वेट, ये सब सीखने के लिए ये टर्मिनोलॉजी मालूम होना पड़ेगा पहले, अगर वो टर्मिनोलॉजी नहीं आ गया तो ये समझना मुश्किल हो जाएगा. सो हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एंड डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ओके, व्हाट यू कॉल हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर. डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर. ओके, हैलोजिनेशन, व्हाट डज इट मीन, हैलोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हैलोजेंस, एडिशन ऑफ हैलोजेंस. అలాగే हैलोजिनेशन, डिहैलोजिनेशन, डिहैलोजिनेशन का मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ हैलोजेंस. हैलोजेंस क्या क्या होते हैं यहाँ पर, X इज हैलोजन, जनरली क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. क्लोरीन होता है लेकिन उसके प्रॉपर्टीज डिफरेंट से होते हैं, बिकॉज इट इज ए सुपर हैलोजन. क्लोरीन प्रॉपर्टीज डिफरेंट గా ఉంటాయి, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ओके, like that. Okay, and hydrohalogenation, another term is there, hydrohalogenation. What is hydrohalogenation? Addition of hydrogen and halogen, hydrogen and halogen means HX, H and X, X indicates chlorine, bromine, iodine. Dehydrohalogenation, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन. सी समझना है, ये सब मालूम होने से सब्जेक्ट आ जाएगा, अगर ये नहीं मालूम होने से सब्जेक्ट मुश्किल हो जाएगा. डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन मीन्स HX, here plus HX, here minus HX. Okay, like that. Decarboxylation, और एक वर्ड आएगा, decarboxylation. What does it mean? Decarboxylation means removal of carbon dioxide. ఓకేనా, ఆ పదాలన్నీ తెలిసి ఉండాలి, ఎప్పుడు వస్తుంటాయి రిపీటెడ్గా, అవి ఏం అడగడు, అవేం బిట్లు కాదు, దాని మీద బేస్ అయిన रिएक्शन ఉంటుంది. ओके, नाउ देखो अभी यहाँ पर, सो रिडक्शन मीन्स इंदाक చెప్పాను కదా, ఎడిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆఫ్ అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్, డబుల్ బాండ్, ట్రిపుల్ బాండ్ ఉన్న వాటికి హైడ్రోజన్ కలపడం. ఓకే, सी लुक एट द बोर्ड, फर्स्ट वन
फ्रॉम alkenes एंड alkynes, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन. रिडक्शन मींस हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा. इसको बोलते हैं कि हाइड्रोजनेशन और डिहाइड्रोजनेशन. हाइड्रोजनेशन ऑफ, और इसको ऐसा लिख सकते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ alkenes and alkynes. Okay, like that. So when alkenes and alkynes are completely hydrogenated in the presence of metal catalyst, alkane is formed and addition of hydrogen is syn reaction, same side. हाइड्रोजन सेम साइड ऐड होता है. सो ये तो जरूर नहीं यहाँ पर, जो जब आएगा जब मैं पढ़ाऊंगा. सपोज इसी प्रकार है CH2 इथिलीन, इसे हाइड्रोजन ऐड किया मैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड. ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इधर एक हाइड्रोजन उधर एक हाइड्रोजन ऐड हो गया. अब कंपाउंड बनता है कि C डबल बॉन्ड C H और इधर एक H और इधर एक H, सॉरी सिंगल बॉन्ड H, इधर एक H और इधर भी एक H, मीन्स CH3, that is nothing but CH3 single bond CH3 or nothing but C2H6, nothing but ethane. ఓకే, C2H6 ఫైనల్ గా వచ్చేది. బాండ్ బ్రేక్ అయితే అటు ఇటు యాడ్ అవ్వాలి. హైడ్రోజన్ కలిపావు, హైడ్రోజనేషన్ ఆఫ్ ఆల్కీన్. ఓకే, ఆర్ సరే పోయింది అది, మళ్ళీ రాసుకోదాన్ని. राइट. आ तरह इधो ट्रिपल बॉन्ड. सपोज ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में पहला एक बॉन्ड ब्रेक होगा, उधर इधर ऐड होता है, और ये बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, उधर इधर ऐड होता है, सिंगल बॉन्ड रहता है. पहला 2 बॉन्ड्स होते हैं, पहले फर्स्ट अटू इटू ऐड आई, उसके बाद दूसरा हाइड्रोजन ऐड हो गया, इधर इधर भी ऐड हो जाते हैं 2 हाइड्रोजन. और यू कैन राइट लाइक दिस, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, पहला एक हाइड्रोजन plus H2 in the presence of catalyst nickel heat. As a result bond break हो गया, इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन. As a result CH2 डबल बॉन्ड CH2, और फिर से एक प्लस हाइड्रोजन, और अनसैचुरेशन है ना, डबल बॉन्ड है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हीटिंग. ये बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन. अब बन जाएगा कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ईथेन आ जाएगा. पहले क्या है ये, एसिटाइन बोलते हैं इसे, और इथाइन आयुपैक नेम इथाइन. और ये है कि इथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिलीन. ओके, लाइक दैट. ओके ना, एम आई क्या श्रुति? यस सर, फॉलोइंग. क्या फॉलो है कि या नहीं? स्पीड हो गया है क्या? अगर इतना स्पीड नहीं तो मुश्किल हो जाएगा. इतना सिलेबस है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है ऑर्गेनिक पढ़ाने वाला. सो ये सब समझाने के लिए पहले ये बेसिक नॉलेज होना पड़ेगा. ये टर्मिनोलॉजी ये सब सिखाने में ज़्यादा टाइम पकड़ेगा. उसके बाद आसान से चले जाएगा, लेसन स्पीड अप हो जाएगा. सो घबराइए मत, मैं पढ़ाऊँगा. यू डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट फॉलो. मैं क्या बताया वो फॉलो होना. देखो श्रुति, आपको मैं ये लाइव क्लासेस के बाद में स्टडी मटेरियल समथिंग होता है, एक ऑप्शन स्टडी मटेरियल, वहाँ पे जाके क्लिक करो. उसमें मैं स्टडी मटेरियल रख दिया आपको. वो स्टडी मटेरियल अच्छा मटेरियल है, वो एक बार रेफर करो. हाँ, अगर वो भी जब जब चेक करते रहो स्टडी मटेरियल. और एग्ज़ाम भी एक मैं प्रिपेयर किया, वो भी होगा उसमें. अगर नहीं है तो मुझे मैसेज करो, मैं एग्ज़ाम का पेपर भी मैं आपको भेज दूंगा. ओके, राइट नाउ है ना. यहाँ पर देखो, ये कैटलिस्ट बोलता है ना, ये कैटलिस्ट क्या होता है सर? कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट. यहाँ पर कैटलिस्ट बोला है ना, ये कैटलिस्ट क्या क्या यूज करते हैं? पैलाडियम और प्लाटिनम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर. निकल 200 डिग्री और 300 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस इज कॉल्ड सबार्टियर्स एंडरेंस रिएक्शन. अगर निकल यूज किए 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज कॉल्ड सबार्टियर्स एंडरेंस रिएक्शन. रेने निकल, fine grains of nickel and aluminum at room temperature. Suppose compound इसी प्रकार दिया गया, CH2 और डबल बॉन्ड CH2 nickel and 200 degree centigrade, and here CH3 single bond CH3 is formed. This reaction is dash. Its name is Sabatier-Sanderens reaction. Why?
निकल टेम्परेचर यूज करने से वो रिएक्शन को बोलते हैं कि सबार्टिन सेंडरेंस रिएक्शन। लिखो वो भी 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड यूज करने से सबार्टिन सेंडरेंस रिएक्शन। ओके हो गया। अगर आपको इसी प्रकार दिया जाता है, सपोज डैश is treated with what you call palladium or platinum at ordinary temperature. Here what you call CH3 single bond CH3 is formed plus 2 moles of hydrogen 2H2. What is X? यहाँ पर X लिखा गया। What is X? क्वेश्चन इज इसी तरह होगा। ఏంటి ఎక్స్ ఏంటి అక్కడ CH2 तप्पु CH2 डबल बॉन्ड CH2 नहीं। क्या होगा यहाँ पर X क्या होगा? यहाँ पर ईथेन आ गया ना, ईथेन 2 कार्बन वाला 2 मोल्स यूज किया है ना यहाँ पर, इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड होना पड़ेगा। यहाँ पर 1 मोल ब्रेक होके यहाँ पर इधर ऐड होगा एक H2, दूसरा वाला H2 ये ब्रेक होके इधर ऐड होगा। अभी CH3 सिंगल बॉन्ड होगा, CH3 फॉर्म होगा। 2 मोल्स देने से यहाँ पर आइडेंटिफाई करना, इमेजिन सोचना पड़ेगा। ये तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है। वो आप भी बोलते हैं सर आप नहीं पढ़े सर, हमको ऐसा वाला नहीं दिया ना हमको, 2 मोल्स वाला बोलते हैं। దట్ ఇంప్లైస్, అది ఇంప్లై అవుతుంది। ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పామంటే దాని మీద ఎన్నో రకాలుగా అడగవచ్చు। ఓకే, ఇక్కడ सपोज इसी तरह दिया X, यहाँ पर हाइड्रोजन बाय प्लैटिनम और पैलाडियम एंड हीटिंग गिव्स राइज टू CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या होना चाहिए वहां पर? ఒక బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది, ఒక H2నేగా, అంటే ఒక బాండ్ అంటే ట్రిపుల్ బాండ్ ఉండాలి। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होना पड़ेगा, दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसलिए एक बॉन्ड ब्रेक होके इधर H ऐड हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। समझी? మరి ఇలా చెప్పాలంటే సిలబస్ కదలదు, ఒక్కోటి చెప్పాలంటే జస్ట్ కాన్సెప్ట్ చెప్పి వెళ్ళిపోవాలి। మీరు మీ బుక్లు తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయాలి। आप अपने पास जो भी बुक्स है वो निकाल के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, अभी देखो नेक्स्ट ये सब रिएक्शंस। इथीन और इथिलीन अभी पढ़ा है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन निकल पैलाडियम प्लैटिनम, बॉन्ड ब्रेक हो गया, इधर ऐड हो गया, इथेन हो गया। और यू कैन राइट लाइक दिस CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, सो और यू कैन राइट, ये देखो इसका नाम क्या है? प्रोपीन। ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ना, 3 कार्बन एटम्स है, इसीलिए प्रोपीन। इसे हाइड्रोजन ऐड किया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इधर एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, सो CH3 CH2 CH3 हो गया। ओके, निकल पैलाडियम प्लैटिनम प्रोपेन, प्रोपीन बन गया कि प्रोपेन आल्केन। और देखो यहाँ पर प्रोपाइन, इसका नाम CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH 2H2, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, H ऐड हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इधर H ऐड हो गया, प्रोपेन बन गया। मीन्स हाउ मेनी मोल्स? देखो यहाँ पर 2 मोल्स है, मीन्स 2 बॉन्ड्स ब्रेक होने का जरूरी है। यहाँ पर सिंगल मोल है, मीन्स एक डबल बॉन्ड होना पड़ेगा। अंडरस्टैंड और नॉट? सो लाइक दैट by reduction with red phosphorus and HI. ఓకే, కల్ పడేంగే। ఓకే, టుమారో విల్ కంటిన్యూ। మరి చాలా ఉంటుంది అది, అదొక్కటే మొదలెట్టామంటే చాలా ఉంటుంది దాంట్లో। రిడక్షన్ విత్ రెడ్ ఫాస్ఫరస్ అండ్ HI। ఓకే, మరి ఆపేస్తున్నాను। अभी मैं स्टॉप करने वाला हूँ यहाँ पर। ओके, खत्म हो गया आज का लेसन। ओके రైట్। బాబు ఈ వీడియో చివరి వరకు విన్నటువంటి వాళ్ళు దీన్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఇంకేం చేయాలి? సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పండి। మీరు లైక్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి। మీరు లైక్ చేసి కామెంట్ పెడితే మరిన్ని వీడియోస్ చేస్తాను, అవన్నీ మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి। ఓకేనా? రైట్।